Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 4, The Elephant's Nose of our English literature book as we said in our last video. Our topics were summary of first to fourth stanzas and our next topic was 15 hard words of chapter 4, The Elephant's Nose. So students, we have read and explained summary of first to fourth stanzas of this chapter 4, The Elephant's Nose, and we have also read and note down 15 hard words of this chapter 4, The Elephant's Nose, in our Fair English Literature notebook in our last video. And students, today's our topics are first summary of 5th to 8th stanzas of this chapter 4, The Elephant's Nose, and our next topic is word meaning, 10 word meaning of this chapter 4, The Elephant's Nose, and our last topic in our today's class is exercise A number these sentences in the correct sequence, which is page number 29. Okay, so students, firstly we will read and explain summary of 5th to 8th stanzas of this chapter 4, and after it is we will read and note down word meaning first to 10 of this chapter for The Elephant's Nose, and after it at last we will read and solve exercise A number these sentences in the correct sequence of this chapter 4 and solve this exercise in our English literature book as we searched. Okay, so all students, firstly we are going to read and explain summary of remaining stanzas of this chapter 4. Okay, so all students, with special test in your class and listen to my words clearly. Let's see. Students, we will definitely read and explain summary of remaining stanzas of this chapter 4, but firstly we are going to revise which we have read in our last class. Okay, जो स्टूडेंट्स हम लोग रीड कर चुके हैं उसकी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ उसे, उसके बाद अपने नेक्स्ट आंसर्स को हम अपने क्लियर करेंगे. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ दिस चैप्टर 4 इज द एलिफेंट्स नोज. इट्स मीन हाथी की नाक. ओके, एंड स्टूडेंट्स वी हैव रीड फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्स. ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड एंड रिवाइज summary of these stanzas which we have read. Okay, read a story about an elephant's child and his nose. There was a time when the elephant's nose was no bigger than a boot, that he could wriggle from side to side, but a curious elephant's child changed all that. The elephant's child was always asking questions, but no one needed answers to his question. And then one day he asked a question that frightened all the animals. Here the meaning of frightened, that feeling fear. Okay, and here the meaning of wriggles, that twist and turn your body quickly. Okay, what does a crocodile have for dinner? He asked. So said all the animals. Okay, students, firstly now we are going to explain the summary of first and second stanza. Okay, the students, we have read is in this stanza first and second कि स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा में हमने स्टूडेंट रीड किया था कि ये जो स्टोरी है ना, एक एलिफेंट के बच्चे के बारे में, एक एलिफेंट के चाइल्ड और उसके नोश के बारे में. इट्स मीन हाथी के एक बच्चे और उसकी नाक के बारे में एक कहानी है, एक स्टोरी है. ये उस टाइम की बात है जब एलिफेंट की जो नोज़ होती थी ना, वो एक बूट से ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी. ओके, और स्टूडेंट्स ये इतनी लॉन्ग नहीं होती थी कि वो उसे विगल कर सके. विगल मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न और बॉडी क्योंकि. ओके, इट्स मीन अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना, टर्न करना. ट्विस्ट मीन्स मोड़ना एंड टर्न मीन्स घुमाना. अपनी बॉडी को जल्दी से, क्योंकि मीन्स जल्दी से घुमाना और मोड़ना. ओके, तो उनकी जो एलिफेंट्स की नोज़ होती थी वो इतनी लॉन्ग नहीं होती थी कि वो उसे जल्दी से घुमा सके, मोड़ सके फ्रॉम साइड टू साइड. ओके, एक ओर से दूसरी ओर. ओके, तो उस टाइम की बात है जब एलिफेंट्स की नोज़ एक बूट से ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी कि उसे वो एक साइड से दूसरी साइड तक जल्दी से मोड़ सके, टर्न कर सके और ट्विस्ट कर सके, मोड़ सके, घुमा सके. ओके, बट अ क्यूरियस एलिफेंट चाइल्ड चेंज्ड ऑल दैट. लेकिन क्यूरियस, CURIOUS, here the meaning of curious, that someone who wants to know about things. ओके, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता. क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला. ओके, लेकिन एक जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने सब कुछ चेंज करके रख दिया, सब कुछ बदल के रख दिया. ओके, तो ये जो एलिफेंट का चाइल्ड था ये हमेशा क्वेश्चन क्या करता था, हमेशा प्रश्न पूछा करता था, लेकिन इसके क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं जानता था. ओके, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रेंज वंडरफुल होते थे ना, इस वजह से. तो फिर क्या होता है कि एक दिन इसने एक ऐसा क्वेश्चन किया ना कि सारे एनिमल्स को इसने डरा के रख दिया. फ्राइटेंड मीन्स फीलिंग फेयर. ओके, इट्स मीन डर का एहसास होना, डर को अनुभव करना. ओके, तो एक दिन उसने ऐसा क्वेश्चन किया कि सारे एनिमल्स को उसके क्वेश्चन ने डरा के रख दिया. एंड स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट्स द क्वेश्चन ऑफ दिस क्यूरियस एलिफेंट चाइल्ड. ओके, तो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन ऑफ दिस क्यूरियस एलिफेंट चाइल्ड इज व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. ओके, तो उसका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन किया एनिमल से
कि क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या है, क्रोकोडाइल के पास रात के खाने के लिए क्या है। ओके, तो जो एनिमल्स थे ना वो क्या बोलते, सुस एसेट यू एसेट एच है ना, इट्स मीन होता है इट्स अ साउंड, इट्स अ साउंड है कि साउंड इट्स मीन्स होता है जैसे हम कुछ बोलते हैं और जिसे बोल रहे होते हैं और जो बात हम किसी को बता रहे होते हैं वो पर्सन नहीं चाहते कि कोई अदर पर्सन उस बात को सुने, तो वो क्या बोलते हैं कि माउथ फिंगर कैसे बोलते हैं ना, ऐसे करके ना सकते, ऐसे करके होते हैं, इट्स मीन होता है सुस का साउंड होता है, इट्स मीन होता है चुप रहना। ओके, चुप रहने को बोलना, किसी को शांत कराना। ओके, तो जैसे आप शोर करते हैं क्लास में तो टीचर क्या करती है, माउथ फिंगर रख के ऐसे बोलती ना, है ना, ताकि शांत रहो, चुप रहो, है ना। तो वही एक मतलब सुस्मित होते हैं शांत है ना, तो सारे एनिमल्स सुस का साउंड करते हैं, बोलते कि शांत चुप रहो। ओके, नो वन वांटेड टू अवन टॉक अबाउट इट, कोई भी इस बारे में बात तक नहीं करना चाहता था, बट ही वुड नॉट सुस। हाँ, लेकिन वो शांत नहीं होता है क्योंकि वो तो क्यूरियस है, वो तो जिज्ञासु, उसे तो अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ओके, वो तो तब तक परेशान रहेगा जब तक उसे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। बाय एंड बाय ही मेट द Colo birds, he told him, go to the green grassy Limpopo river and you will get your answer. Okay, तो वो क्या कहते हैं, बाय एंड बाय मीन्स स्टैंड होता है लेटर। ओके, तो बाद में पहले वो स्टूडेंट्स क्या करता है कि वो ऐसे पहले वन बाई वन सभी एनिमल्स के पास जाता है, लॉयन के पास, बियर के पास, हॉर्स के पास, ओके, मंकी के पास, लेकिन कोई भी उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है ना, जिसके पास भी जाता है सब उसे सुस्त करा देते थे, सबसे शांत करा देते थे। ओके, तो वो क्या करता है, लास्ट वो किसके पास जाता है, कोलो बर्ड के पास जाता है। और जब भी कोलो बर्ड के पास जाते ना, तो कोलो बर्ड वी कैन सी इन दिस पिक्चर, इट्स अ सी इज कोलो बर्ड। ओके, विच इज इन रेड कलर एंड सिट ऑन दिस ट्री। ओके, जो इस ट्री पे बैठी है रेड कलर की है ना, और थोड़ी सी ब्यूटीफुल सी लग रही है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो यही होती है कोलो बर्ड। ये कोलो बर्ड जो होती है ये उससे बोलती है कि गो टू द ग्रीन ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड यू विल गेट योर आंसर। बोलती है कि ग्रीन मीन्स हरी, ग्रासी मीन्स रेड, हियर द मीन ऑफ ग्रासी कवर्ड इन अ लॉट ऑफ ऑयल। ओके, टेल से ढकी हुई, ओके, ऑयल से ढकी, तो बोलती है कि ग्रे, हरी और ऑयल से ढकी हुई लिम्पोपो रिवर पे जाओ, लिम्पोपो नदी पे जाओ, रिवर मीन्स नदी, और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ऑफ ही वेंट टू द लिम्पोपो रिवर, एट द एज ऑफ द रिवर ही saw a log of wood but then it winked one eye. ओके, इसलिए वो लिम्पोपो नदी पर जाता है बट एट द एज ऑफ द रिवर, लेकिन नदी के किनारे पर क्या होता है कि ही saw a log of wood, उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा। अ लॉग ऑफ वुड मीन्स होता है लकड़ी का लट्ठा, इट्स मीन होता है कि अ थिक वुडन स्टिक, एक मोटी सी लकड़ी को छड़ को बोलती है अ लॉग ऑफ वुड, इट्स मीन लकड़ी का लट्ठा। बट देन इट विंग्ड ऑफ वन ऑफ, लेकिन ये जो लॉग ऑफ वुड है ना, लकड़ी का जो लट्ठा है ना, वो विंग्ड करता है। विंग्ड मीन्स हियर द मीन ऑफ विंग दैट क्लोज्ड वन आई एंड ओपन इट अगेन क्विकली। वन आई को क्लोज करना और फिर दोबारा से जल्दी से ओपन करना, उसे बोलते हैं विंग। एक आँख को बंद करना, उसे फिर जल्दी से दोबारा खोलना, उसे बोलते हैं विंग करना, आँख को झपकाना। ओके, तो बट देन इट विंग्ड वन है, लेकिन उसने अपनी एक आँख को झपकाई। ओके, फिर स्टेंस क्या होता है, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेंजा which we have read in our last class. Excuse me, but have you ever seen a crocodile? Asked the elephant child politely. Politely means होता है शिष्टापूर्वक, नम्रतापूर्वक। तो ये जो हाथी का बच्चा है ये बहुत ही पॉलिटली से शिष्टाचार से बहुत ही मतलब नम्रतापूर्वक शिष्टापूर्वक क्वेश्चन करता है उस जो अलॉट ऑफ वुड लग रहा था, जो लकड़ी का एक लट्ठा लग रहा था। ओके, तो उससे क्वेश्चन करता है कि माफ़ कीजिएगा क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? तो आई एम दी क्रोकोडाइल ही सेड। तो वो जो अ लॉट ऑफ वुड था, ओके, जो अ लॉग ऑफ वुड था, ओके, लकड़ी का जो लट्ठा था ना, तो वो आंसर करता है कि मैं क्रोकोडाइल। ओके, स्टूडेंट्स, जो अ लॉग ऑफ वुड है, जो लकड़ी का लट्ठा है, एक्चुअल में वो अ लॉग ऑफ वुड नहीं है, वो लकड़ी का लट्ठा नहीं, वो क्या क्रोकोडाइल है। ओके, तो चूँकि ये चाइल्ड जो है एलिफेंट का वो बहुत ही इनोसेंट है, तो उसे वो लॉग ऑफ वुड लगा, वो लकड़ी का लट्ठा लगा। बट जब उसने थोड़ा सा मूवमेंट किया, अपनी आइज़ को विंक किया, ओके, आई को विंक किया, आँख को झपकाया, तो उसे पता चला, तभी तो उसने क्वेश्चन किया। और जब उसने क्वेश्चन किया तो वो आंसर देता है और लॉग ऑफ वुड, वो लकड़ी का जो लट्ठा लग रहा था ना, वो आंसर देता है कि मैं क्रोकोडाइल हूँ। ओके, द एलिफेंट चाइल्ड ग्रू एक्साइटेड एंड नील डाउन। अब ये एलिफेंट का चाइल्ड और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, और नील डाउन में हियर द मीन ऑफ नील डाउन डेट गॉट डाउन ऑन दी नीज, घुटने टेक देना, घुटनों के बल बैठ जाती है, अपने घुटने टेक देता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। ओके, जो स्टूडेंट्स जैसे हम ही होते हैं, किसी चीज़ के बारे में अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं और वो चीज़ अगर हमें मतलब पता चलने वाली होती है तो हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वैसे ही सेम यह इसके साथ हो रहा है, ये एलिफेंट्स के चाइल्ड के साथ हो रहा है, क्योंकि उसे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि क्रोकोडाइल के पास उसके डिनर के लिए क्या है। ओके, तो अब जो क्रोकोडाइल के सामने है ना, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मुझे अब अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। तो वो अपने नील डाउन कर देता है, इतनी घुटने टेक देता है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दीज डेज, ही सैड, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर।
अब इससे कुछ बुश कहते हैं कि जो एलिफेंट्स का चाइल्ड है बोलता है कि मैं आपको इन दिनों मतलब बहुत ढूंढ रहा हूँ, और क्या प्लीज़ मुझे बता सकते हैं आपके पास डिनर के लिए क्या, आपके पास रात के खाने के लिए क्या है. तो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन सभी ऑफ फर्स्ट ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड विच वी हैव रीड इन अवर लास्ट क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू रिमेनिंग स्टैंजास. ओके, सो लेट्स सी नाउ अवर क्लासेस स्टार्ट. ओके, अब हमारी आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही थी. अभी तक हमने जो रीड किया वो हम रीड कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास में, वो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा है. ओके, सो लेट्स सी. Come nearer, little one, come nearer, and I will whisper, said the crocodile. Okay, come nearer means pass out, little one means छोटे, come nearer means pass out, and means और I means मैं, will it's a future tense helping verb. Whisper, WHISP, या whisper means होता है फुसफुसाना, बहुत ही स्लो बोलना. ओके, इतने स्लो बोलना कि कोई अदर पर्सन ना सुन पाए, कोई जो थोड़ा सा भी फार हो तो वो ना सुन पाए. विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना. ओके, बहुत ही स्लो स्पीक करना. सेड दी क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल ने कहा. ओके, तो अब ये क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या बोलते हैं, बोलता है पास आओ छोटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विस्पर करके बताऊंगा. ओके, मैं तुम्हें विस्पर करूँगा, इट्स मीन फुसफुसा के बताऊंगा, तुम्हारे ईयर में बताऊंगा, कान में बताऊंगा, ताकि कोई अदर पर्सन ना सुन ले. ओके, कि क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या है. ओके, तो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब यू डेट ये जो एलिफेंट्स का चाइल्ड है, हाथी का बच्चा, बहुत ही इनोसेंट सा है. ओके, क्यूरियस है, जिज्ञासु है, बट ये बहुत इनोसेंट है. और बट ये स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल इट्स अ रियली वेरी स्मार्ट एंड विग्ड. ये जो क्रोकोडाइल है बहुत ही विग्ड और स्मार्ट है. ओके, तो ये बहुत विग्ड है क्रोकोडाइल, लेकिन इनोसेंट है. ये एलिफेंट का चाइल्ड तो बहुत ही इनोसेंट है, इट्स अ अपोजिट ऑफ क्रोकोडाइल. तो इसे शायद आई थिंक से ट्रू और क्या राइट है क्या रॉन्ग है, स्पेस शायद डिफरेंट नहीं पता है. ओके, एंड इसे नहीं पता कि ये क्रोकोडाइल से हार्म पहुंचा सकते हैं. ओके, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये क्रोकोडाइल बोलते हैं कि छोटे मेरे पास आओ. ओके, मैं तुम्हें विस्पर करके बताऊंगा, इट्स मीन तुम्हारे ईयर में धीरे से बताऊंगा, फुसफुसा के बताऊंगा. द एलिफेंट्स चाइल्ड पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स माउथ. ओके, अभी जो एलिफेंट्स चाइल्ड है, जो हाथी का बच्चा है, पुट मीन्स रख देता है, हिज मीन्स अपना, हेड मीन्स सर, डाउन मीन्स नीचे, क्लोज मीन्स हियर द मीन ऑफ क्लोज दैट नियर, पास में. ओके, टू द क्रोकोडाइल्स माउथ, इट्स मीन क्रोकोडाइल के मुंह के पास. द एलिफेंट चाइल्ड पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स माउथ. अब ये हाथी का बच्चा क्या करता है, अपने सिर को क्रोकोडाइल के माउथ के पास, मगरमच्छ के मुंह के पास रख देता है. ओके, ताकि उसके कान में, उसके ईयर में वो क्रोकोडाइल उसके क्वेश्चन का आंसर दे दे, उसे बता दे कि क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या है ना. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाई हिज लिटिल नोज. ओके, एंड मिस, और द क्रोकोडाइल मिस मगरमच्छ, कॉट मिस पकड़ लेता है. ओके, ही मिस उसे, बाई मिस द्वारा, हिट मिस उसकी, लिटिल मिस छोटी, नोज मिस नाक से. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाई हिज लिटिल नोज, और मगरमच्छ उसे उसकी छोटी नोक के द्वारा पकड़ लेता है. ओके, उसकी छोटी नाक के द्वारा, उसकी छोटी नोज के द्वारा से पकड़ लेते हैं. ओके, तो जैसे ही वो क्या करते हैं, जो लिटिल जो एलिफेंट्स का चाइल्ड है, मतलब एलिफेंट का लिटिल चाइल्ड है. ओके, हाथी का जो छोटा सा बच्चा है, वो जैसे ही अपना सिर क्रोकोडाइल के माउथ के पास रखता है, ताकि वो उसे मतलब बता दे विस्पर करके कि क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या है, उसे उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए. जैसे वो अपना सिर रखता है तो क्या करता है क्रोकोडाइल, जो कि बहुत ही विग्ड है, बहुत ही स्मार्ट है. ओके, तो वो क्या करता है, उस जो क्रोकोडाइल है ना, वो एलिफेंट के चाइल्ड को उसकी नोज से पकड़ लेता है, उसकी नोज के द्वारा पकड़ लेता है, उसकी नाक के द्वारा पकड़ लेता है. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर इट. The elephant child knew he was in big trouble. He sat back on his hunches and he pulled and pulled. Okay, the elephant child, it means हाथी का बच्चा. Okay, हाथी का बच्चा, नी means जान गया. नी इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ नो. नो की सेकेंड फॉर्म होती नी. नो मीन्स जाना है, नी मीन्स जान गया. ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, इन मीन्स में, बिग मीन्स BIG, बिग मीन्स बड़ी, लार्ज. ओके, ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, मुसीबत या परेशानी. द एलिफेंट चाइल्ड नी ही वाज इन बिग ट्रबल. तो स्टूडेंट्स, हाथी का बच्चा जान गया कि वह एक बड़ी मुसीबत में. ओके, ही सेट बैक ऑन हिज हंचेस एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड. ओके, ही मीन्स वह, सेट मीन्स बैठ गया. सेट इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ सिट. सिट मीन्स बैठना एंड सेट मीन्स बैठ गया. बैक मीन्स पीछे, ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स अपने, हंचेस, HAUNCHES, हंचेस. हियर द मीन ऑफ हंचेस दैट the back of the top part of the logs, the back of the top part of the legs, we called hunches. Okay, it's mean कि पैरों के शीर्ष भाग के पीछे के भाग को बोलते हैं हंचेस. इट्स मीन होते हैं कुबर. ओके, आई रीड अगेन.
द बैक ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द लैग्स, ओके, इट्स मीन पैरों के शीर्ष भाग के पीछे के भाग को बोलते हैं हंचेस, इट्स मीन होता है कुबर, ओके। तो ये जो जब ये एलिफेंट का चाइल्ड जान जाता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो वो क्या करता है, वो अपने कुवट पर बैठ जाते हैं, ओके। एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड, एंड मिस और ही मिस, पुल्ड मीन्स खिंच गया, एंड मिस और पुल्ड मीन्स खिंच गया, ओके। पुल्ड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ पुल, पुल की सेकंड फॉर्म होती है पुल, पुल मीन्स PULL, पुल मीन्स होता है खींचना, एंड पुल मीन्स खिंच गया, ओके। तो एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड, इट्स मीन वह खिंच गया और खिंच गया, ओके। द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड एंड पुल्ड। अब क्या करते हैं, क्रोकोडाइल बहुत ही फोर्स लगाता है उसे अपनी ओर खींचने के लिए, ओके। एंड क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, स्प्लैश मीन्स होता है छींट मारी, ओके। स्प्लैश इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ स्प्लैश, ओके। तो स्प्लैश मीन्स होता है छींट मारना, इन दी वाटर मीन्स पानी में, एंड मीन्स और पुल्ड एंड पुल्ड मीन्स खींच गया और खींच गया। ये क्रोकोडाइल स्प्लैश इन दी वाटर एंड पुल्ड एंड पुल्ड। अब ये क्रोकोडाइल क्या करता है, मतलब उसे वाटर में खींच के ले जा रहे हैं ना, तो जब वो वाटर में जब हम जाते हैं या कोई भी थिंग्स वाटर में जाती है तो स्प्लैश्ड होता है, छींटे मारती है ना, वाटर जो होता है वो स्प्लैश्ड करता है, छींट मारते हैं ना। तो अब ये जब क्रोकोडाइल इसको एलिफेंट्स के चाइल्ड को लेके जा रहे हैं ना, वाटर में खींच के ले जा रहे हैं, बहुत ही पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के खींच के लेके जा रहा है, तो क्या होता है, वाटर जो होता है स्प्लैश्ड करता है, ओके। तो क्रोकोडाइल वाटर में स्प्लैश करता है, पानी में छींटे मारता है और इसे खींचता जाता है, एलिफेंट के चाइल्ड को खींचता जाता है। दे बॉथ पुल्ड एंड पुल्ड, दे मीन्स वे, बॉथ मीन्स दोनों, पुल मीन्स खिंच गया, एंड मीन्स और पुल्ड मीन्स खिंच गया। वे दोनों खिंचते गए, ओके। इट्स मीन कि जो क्रोकोडाइल ना पूरी फोर्स से अपनी पूरी स्ट्रेंथ से एलिफेंट्स के चाइल्ड को अपनी ओर खींच रहा है, और चूँकि स्ट्रेंथ एलिफेंट्स का जो चाइल्ड है, हाथी का बच्चा है, जो बहुत ही इनोसेंट था, उसे नहीं आइडिया था कि उसे ये क्रोकोडाइल हार्म पहुंचा सकता है, ओके। इसका आंसर नहीं देगा, अगर वो अपनी माउथ उसके मतलब अपना अगर वो हेड उसके क्रोकोडाइल के माउथ के पास रखेगा तो वो आंसर नहीं देगा, बल्कि उसे हार्म पहुंचा देगा, ये उसे नहीं पता था ना। तो स्ट्रेंथ जब ये जानते हैं कि हाँ अब ये मुझे हार्म पहुंचा रहे, मेरी नोज़ को पुल्ड कर रहा है, तो एलिफेंट का जो चाइल्ड है वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी खुद की लाइफ को सेव करने के लिए, ओके। स्ट्रेंथ जब किसी की लाइफ डेंजर्स में होती है ना, ओके, तो वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा देता है, पूरी पावर लगा देता है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। और सेम यही हो रहा है एलिफेंट के चाइल्ड के साथ। एलिफेंट के चाइल्ड की नोज़ को क्रोकोडाइल खींच रहा होता है और उसे उसकी नोज़ के द्वारा उसे ले जा रहा होता है वाटर में, उसे हार्म पहुंचाने के लिए। लेकिन अब जो एलिफेंट क्या कर रहा है, अपने खुद को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए वो पूरी स्ट्रेंथ लगा रहा होता है, ओके। तो क्या होता है, द लिटिल एलिफेंट्स नोज केप्ट स्क्रैचिंग एंड स्क्रैचिंग, ओके। छोटे लिटिल मीन्स छोटा, एलिफेंट्स नोज मीन्स हाथी की नाक, केप्ट तो स्क्रैचिंग, ओके। स्क्रैचिंग हो जाती है उसकी, स्क्रैचिंग मीन्स होते हैं खुरजाना, ओके, हर्ट होना, ओके। तो दी लिटिल एलिफेंट्स नोज केप्ट स्क्रैचिंग एंड स्क्रैचिंग। अब ये जो छोटे हाथी की नाक खिंचती गई और खिंचती गई, ओके। एंड तो क्या, स्क्रैचिंग मीन्स खींचना, ओके। अभी छोटे हाथी की नाक जो थी वो स्क्रैचिंग होती गई, खिंचती गई, उसमें इट्स मीन खरोच आती गई, ओके। एट लास्ट दी क्रोकोडाइल लेट गो, ओके। एट लास्ट मीन्स अंत में, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, लेट गो मीन्स जाने दो, ओके। एट लास्ट दी क्रोकोडाइल लेट गो। अंत में क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल होता है ये अपनी डिफीट मान लेता है, इट्स मीन वो इतना फोर्स नहीं लगा पाता कि वो एलिफेंट के चाइल्ड को अपनी ओर खींच सके। मतलब उसने पूरी कोशिश की, खींच तो रहा था, उसकी नोज़ को बहुत हार्म पहुंचाया, उसको नोज़ को बिल्कुल स्क्रैच कर दिया। लेकिन जब चूँकि एलिफेंट का चाइल्ड तो बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगा रहा था उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसे तो अपनी लाइफ को सेव करना था ना, तो क्या होता है कि बाद में ये मगरमच्छ जो होता है, क्रोकोडाइल होता है, वो उसकी नोज़ उससे छूट जाती है, ओके। और स्टैंड फिर क्या होता है कि बुफ्ड, BUFFUDD, ओके, बुफ्ड इट्स अ एक्सक्लामेटरी वर्ड है आपका, बुफ्ड। द एलिफेंट्स चाइल्ड फेल, ओके। तो एलिफेंट का चाइल्ड जो होता है वो फेल मीन्स गिर गया, ओके। एंड समवन वेंट फॉल, ओके। जब कोई गिरता है तो एक साउंड होता है ना, तो बुफ्ड का साउंड हुआ, ओके। द एलिफेंट चाइल्ड फेल, तो इट्स मीन हाथी का बच्चा गिर गया, राइट ऑन हिज बिग ब्रॉड बैक, ओके। तो राइट ऑन हिज मीन्स उसकी, बिग मीन्स बड़ी, ब्रॉड मीन्स चौड़ी, बैक मीन्स होता है पीठ, ओके। तो द एलिफेंट चाइल्ड फेल राइट ऑन हिज बिग ब्रॉड बैक, इट्स मीन कि हाथी का बच्चा अपनी बड़ी चौड़ी पीठ पर गिर गया, ओके। अब क्या होता है कि ही लुक्ड एट हिज नोज, ही मीन्स उसने, लुक मीन्स देखी, एट हिज नोज मीन्स अपनी नोज को, ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड, ओके। अब वह नहीं देख सकता था कि उसका एंड कहाँ हो रहा है, उसका अंत कहाँ हो रहा है, ओके। इट वॉज लॉन्ग, वह बहुत लंबी थी, ओके।
इट्स मीन कि जब ये जो क्रोकोडाइल ने से छोड़ दिया तो एलिफेंट के जो चाइल्ड था उसने अपनी नोज़ देखी, तो एलिफेंट ने जब अपनी एलिफेंट के चाइल्ड ने जब अपनी नोज़ देखी तो उसका एंड ही नहीं हो रहा था, उसका अंत ही नहीं हो रहा था, वो फिनिश ही नहीं हो रही थी, बिकॉज इट वॉज लॉन्ग, क्योंकि वह बहुत लॉन्ग थी, लंबी थी, सो लॉन्ग, बहुत लंबी. ही कुड स्विस इट अराउंड. ओके, ही मीन्स वह कुड मीन सकता था. स्विस मीन्स हियर द मीन ऑफ स्विस दैट मूव विद अ हिसिंग साउंड. हिसिंग साउंड के साथ घुमाना. इस टाइम जब हम एयर में कोई चीज़ बहुत ही तेजी मूव करते ना, हिस का साउंड होता है, तो हिसिंग साउंड के साथ वो उसे घुमा सकता था. बट इट हर्ट हिम ऑफुली. ऑफुली मीन्स इस टाइम मीन ऑफुली दैट वेरी अ लॉट. AWFULLY, बहुत. ओके, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा उसने हर्ट किया हुआ था. ओके, इट्स मीन बट इट हर्ट हिम ऑफुली. इट्स मीन हो गया कि ऑफुली मीन्स बहुत. ओके, लेकिन इसने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी. ओके, सो ही wrapped the nose in cool banana leaves and waited for it to shrink. Here the mean of shrink, ऐसा चाह रहे हैं कि shrink means become smaller. ओके, छोटी बनना, सिकुड़ना. ओके, तो इसने क्या किया, इसलिए उसने अपने केले के ठंडे पत्तों में नाक को, अपनी नोज़ को लपेटा. ओके, उसने अपनी WRAPPED व्रेप मीन्स होता है लपेटा. उसने अपनी नोज़ को कूल बनाना लीव्स, ठंडे केले के पत्तों में लपेटा और उसके सिकुड़ने का इंतजार किया कि ये श्रिंक हो जाए, ये स्मॉल बन जाए. ओके, छोटी हो जाए. ही वेटेड एंड वेटेड. उसने इंतजार किया बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. ही कुड स्टिल स्विस इट अराउंड. ओके, अब उसकी नाक जो है, ओके, ही कुड स्टिल स्विस इट अराउंड. ओके, अब वह उसे घुमा सकता था, स्विस के साउंड के साथ उसे चारों ओर घुमा सकता था. His nose is stayed like that ever since long. Okay, अब उसकी नाक हमेशा के लिए लॉन्ग हो गई थी. And students, our story has finished. This chapter has finished. Okay, तो यही रीज़न स्टूडेंट्स, इट्स अ रीज़न दैट ऑल एनिमल्स हैज़ अ लॉन्ग नोज़. की जो ऑल एलिफेंट्स हैज़ लॉन्ग नोज़. ओके, कि जो एलिफेंट्स है ना, उनकी जो नोज़ है वो लॉन्ग है, यही रीज़न है. ओके, तो इट्स द राइटर ऑफ दिस स्टोरी द एलिफेंट्स नोज इज रुडयार्ड किपलिंग. Okay, Rudyard Kipling. It's a writer. He's a author. He's a writer of this story, The Elephant's Nose. Okay, about the author, Rudyard Kipling was a British writer. तो ये रुडयार्ड किपलिंग है ना, जो स्टोरी के राइटर है, ये ब्रिटिश राइटर है, ब्रिटिश लेखक है. हिज बेस्ट नोन नॉवेल इज किम. इनकी जो सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली जो नॉवेल है इनकी, वो किम है. बट ही गेन्ड पॉपुलरिटी फॉर हिज वंडरफुल चिल्ड्रंस बुक which include the Jungle Book, Just So Stories and Book of Books Hill. ओके, Book of Books Hill. तो स्टूडेंट्स, इनकी जो सबसे ज़्यादा जाने वाली नॉवेल है वो किम है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किससे मिली है? अद्भुत बच्चों की किताबों से मिली है, जिसके अंतर्गत क्या आती है? द जंगल बुक आती है, जस्ट सो स्टोरीज आती है और Book of Books Hills आती है. ओके, तो स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन यू summary of all these stanzas of this chapter for the elephant's nose, and I hope you must have understood this chapter. You have no problem in this chapter. Okay, and you like this chapter. आपको ये chapter पसंद आया होगा, मैं यही आशा करती हूँ. Now we are going to explain word meaning of this chapter 4. Okay, so look at this word meaning. Your first number word is wriggle, 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 and the meaning of wriggle is twist and turn your body quickly. It's mean अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना. ट्विस्ट मीन्स मोड़ना, टर्न मीन्स मोड़ना. अपनी बॉडी को मोड़ना, जल्दी से मोड़ना और घुमाने को बोलते हैं विगल करना. ओके, एंड योर नेक्स्ट वर्ड इज क्यूरियस, CURIOUS. द मीनिंग ऑफ क्यूरियस इज समवन हु वांट्स टू नो अबाउट थिंग्स. ओके, तो कोई व्यक्ति जो कुछ जानने की इच्छा रखता होता है उसे बोलते हैं क्यूरियस. इट्स मीन होता है जिज्ञासु. एंड विगल मीन्स होता है स्टूडेंट हिलाना या टेढ़ी मेढ़े चलना. योर थर्ड वर्ड इज फ्राइटेंड, एंड द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड इज फीलिंग फियर. इट्स मीन डर का एहसास करना, डर का अनुभव करना. योर फोर नंबर वर्ड इज ग्रीसी, GRESY, एंड द मीनिंग ऑफ ग्रीसी इज कवर्ड इन अ लॉट ऑफ ऑयल. इट्स मीन बहुत सारे तेल से ढका हुआ. Your 5 number word is winged, WINKED, winged, and the meaning of winged is closed one eye and open it again quickly. एक आँख को बंद करना और उसे फिर दोबारा से जल्दी से खोलने को बोलते हैं. इट्स मीन आँख झपकाना. योर 6 नंबर वर्ड इज नील डाउन. इट्स मीन द मीनिंग ऑफ नील डाउन इज गॉट डाउन ऑन द नीज. इट्स मीन घुटने टेक देना, घुटनों के बल बैठ जाना. योर 7 नंबर वर्ड इज हंचेस, HAUNCHES, हंचेस, एंड द मीनिंग ऑफ हंचेस इज द बैक ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द लेग्स. इट्स मीन पैरों के शीर्ष भाग का पीछे का भाग. ओके, पैरों के शीर्ष भाग के पीछे के भाग को बोलते हैं हंचेस. इट्स मीन कुबर. योर 8 नंबर वर्ड इज स्विस, एंड द मीनिंग ऑफ स्विस इज मूव विद द हिसिंग साउंड. इट्स मीन हिसिंग साउंड के साथ घुमाना. ओके,
and your 9 number word is awfully, AWFULLY, and the meaning of awfully is very, a lot, it's mean बहुत. Okay, your 10 number word is shrink, SHRINK shrink, and the meaning of shrink is become smaller, it's mean होता है छोटी बनना या सिकुड़ना. क्या? तो स्टूडेंट, I have explained you all word meaning of this chapter and I hope you must have understood. You have no problem in this word meaning. Okay, now we are going to solve exercise here of this chapter. So let's see. Your exercise A is number these sentences in the correct sequence. It's mean ये जो sentences है इन sentences की sequence को, it's mean इन sentences की series को नंबर दीजिए. ओके, उसे संख्या दीजिए. करेक्ट. ओके, सो लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज ही मेट द कोलो कोलो बर्ड हु आस्क्ड हिम टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. ओके, कि वह कोलो कोलो बर्ड से मिलता है जिसने उसे लिम्पोपो नदी पर जाने के लिए कहा. ओके, तो स्टूडेंट्स, it's your second number. Okay, firstly let's see second number sentence. So second number sentence is they bought pulled and pulled. वे दोनों खिंचते गए और खिंचते गए. Your third number sentence is the elephant child fell and his nose had stayed long ever since. हाथी का बच्चा गिर गया और उसकी नाक हमेशा के लिए लंबी हो गई. योर फोर नंबर सेंटेंस इज अ क्यूरियस एलिफेंट चाइल्ड वांटेड टू नो व्हाट अ क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर. तो जिज्ञासु हाथी का बच्चा जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल के पास, मगरमच्छ के पास रात के लिए खाने के लिए क्या होता था. ओके, योर लास्ट सेंटेंस, 5 नंबर सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द क्रोकोडाइल कॉट द एलिफेंट चाइल्ड बाय हिज नोज. तो क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने हाथी के बच्चे को उसकी नोज के द्वारा, उसकी नाक के द्वारा पकड़ा. ओके, तो स्टूडेंट योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज अकॉर्डिंग द करेक्ट ऑर्डर इज. ओके, करेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा अ क्यूरियस एलिफेंट चाइल्ड वांटेड टू नो व्हाट अ क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर. एक जिज्ञासु हाथी का बच्चा जानना चाहता था कि मगरमच्छ के पास रात के खाने के लिए क्या होता था. ओके, तो स्टूडेंट मार्क फर्स्ट नंबर ऑन दिस 4 नंबर बॉक्स. ओके, 4 नंबर बॉक्स पे 1 मार्क करिए. ओके, योर सेकेंड नंबर सेंटेंस विल बी ही मेट द कोलो कोलो बर्ड हु आस्क्ड हिम टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. ओके, तो स्टूडेंट एक वी हैव रीड इन दिस स्टोरी कि एक क्यूरियस एलिफेंट का चाइल्ड, एक जिज्ञासु हाथी का बच्चा जानना चाहता है ना कि क्रोकोडाइल के पास रात के खाने के लिए क्या. उसके बाद क्या होता है, वो 1 by 1 सारे एनिमल्स के पास जाता है लेकिन कोई उसका आंसर नहीं जानते, और जिसके पास भी जाता है तो वो उसे सब्सिट्यूट कर देते, शांत कर देते, लेकिन वो स्विच नहीं होता था. फिर लास्ट में वो किसके पास गया था, कोलो कोलो बर्ड के पास गया था ना. ओके, सो लेट्स सी. ही मेट द कोलो कोलो बर्ड हु आस्क्ड हिम टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. वह कोलो कोलो बर्ड से मिला जिसने उसे लिम्पोपो नदी पर जाने के लिए कहा. इट्स योर सेकेंड नंबर सेंटेंस. सो ऑल स्टूडेंट मार्क सेकेंड नंबर इन योर फर्स्ट नंबर बॉक्स पे 2 मार्क करिए. ओके, एंड आफ्टर स्टूडेंट क्या होता है कि जब वो कोलो कोलो बर्ड के पास गया, कोलो कोलो बर्ड ने उसे लिम्पोपो रिवर में जाने के लिए कहा, तो स्टूडेंट क्या होता है कि वो जब लिम्पोपो रिवर के पास जाता है तो उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा था ना, लकड़ी का मोटा लट्ठा देखा था ना, जिसने फिर विंग्ड किया था, है ना, अपनी एक वन आई को विंग दिया था. ओके, अपनी एक आँख को तुरंत बंद करके जल्दी से दोबारा ओपन की थी ना. फिर क्या होता है, उसने उससे क्वेश्चन किया था कि आपके पास मतलब क्या आपने कभी एलिफेंट को देखा है, सॉरी, क्या आपने कभी एलिफेंट के बच्चे ने आस्क किया था कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है ना. तो क्रोकोडाइल ने क्या बोला था कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, है ना. फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि वो बोलता है कि क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से, आप मुझे बता सकते हैं कि क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या होता है ना. तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें विस्पर करूँगा, धीरे से बताऊँगा, फुसफुसा के बताऊँगा, मेरे पास आओ, है ना, ये बोला था. तो फिर एलिफेंट के चाइल्ड ने क्या किया था, एलिफेंट के चाइल्ड ने अपना हेड रख दिया था ना क्रोकोडाइल के माउथ के पास, और फिर क्रोकोडाइल ने उसे उसकी नोज़ के द्वारा पकड़ लिया था. ओके, तो यही आपका थर्ड नंबर सेंटेंस है विच इज़ योर लास्ट सेंटेंस. द क्रोकोडाइल कॉट द एलिफेंट चाइल्ड बाय हिज नोज. क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने हाथी के बच्चों को उसकी नाक के द्वारा पकड़ लिया, है ना. तो स्टूडेंट्स मार्क हियर 3 नंबर इन योर 5 नंबर बॉक्स पे 3 मार्क करिए. इट्स योर थर्ड नंबर सेंटेंस. ओके, अकॉर्डिंग द करेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका थर्ड सेंटेंस होगा. एंड आफ्टर स्टूडेंट क्या हुआ था कि बहुत दोनों एलिफेंट का चाइल्ड अपनी ओर खींच रहा था उसे. ओके, अपनी लाइफ को सेव करने के, खुद को बचाने के लिए, जब वो जान गया कि हाँ वो बहुत बड़ी एक बिग ट्रबल में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, और क्रोकोडाइल उसे हान पहुंचाने के लिए अपनी तरफ खींच रहा था. एंड आफ्टर इट क्या होता है कि क्रोकोडाइल उसे जाने देता है. ओके, इट्स मीन वो उसके माउथ से एलिफेंट्स की नोज़ लेफ्ट हो जाती है, छूट जाती है. और फिर क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल देखो, दे बॉट पुल्ड एंड पुल्ड. ओके, तो वे दोनों खिंचते गए, है ना. तो स्टूडेंट मार्क हियर इन योर सेकेंड नंबर बॉक्स 4 नंबर, सेकेंड नंबर बॉक्स है उस पर 4 मार्क करिए. ओके, 4 नंबरिंग करिए. क्लियर. एंड आफ्टर स्टूडेंट क्या होता है कि जब एक दूसरे वो खिंचते गए तो लास्ट में क्या हुआ था कि एलिफेंट के माउथ से उसकी नोच छूट जाती है और वो अपनी
बिग बोर्ड बैक के बल गिर जाता है, अपनी बड़ी चौड़ी पीठ के बल गिर जाता है ना, और फिर वो अपनी ही लुक्ड एट हिज नोज़, वो अपनी नोज़ को देखते हैं ना। ये फिर क्या होता है कि वो उसकी नोज़ क्या होती है, वो उसका एंड ही नहीं हो रहा होता है, बहुत लंबी हो गई होती है ना, सो लॉन्ग हो गई होती है। तो वो बनाना की लीव में, कूल बनाना की लीव में अपनी नोज़ को क्या कर लेता है, अब उसके रिप्ड कर लेता है और वेट करता है उसकी स्मॉल बनने का, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। द एलिफेंट चाइल्ड फेल एंड हिज नोज हैड स्टेड लॉन्ग एवर सिंस। तो एलिफेंट का चाइल्ड गिर जाता है और उसकी जो नोज़ होती है ना, जैसे ही मगर क्रोकोडाइल उसे छोड़ता है तो उसकी जो नोज़ होती है वो लंबी हो जाती है हमेशा के, और वो गिर जाता है। ओके, दिस टेन मार्क हियर इन दिस थर्ड नंबर बॉक्स 5 नंबर, थर्ड नंबर बॉक्स में 5 नंबर मार्क करिए। ओके, दिस टेन योर first number sentence it's second sentence, your second number sentence it's a fourth sentence according the correct order, your third number sentence according the correct order is 5 number sentence, your 4 number sentence according the correct order is first number sentence, your last sentence 5 number sentence according the correct order is third sentence. Clear? This time I have explained you all these sentence the correct order, and I hope you must have understood. You have no problem in this exercise. This time today's your classwork is that complete this exercise A. Number these sentences in the correct sequence, which is page number 29 of this chapter 4 in your English literature book as well as and after note down these word meaning of this chapter 4 first to 10 in your Fair English Literature notebook. It's a today's classwork, and your homework is that learn word meaning of this chapter 4 from your Fair English Literature notebook. It's a today's homework. तो आपका classwork क्या, आपको ये word meaning note down करनी है Fair English Literature की notebook पे, एंड आफ्टर क्या करना है कि जो एक्सरसाइज ए इसे अपनी बुक पे कंप्लीट करना है, बुक पे इसे फिल करने है। किया? तो ये आपका क्लास वर्क, आपका स्टूडेंट होमवर्क क्या कि आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी है चैप्टर 4 की। क्लियर? तो स्टूडेंट योर क्लास वर्क एंड होमवर्क इज क्लियर ना। सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन दीज वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 4 in your fair English literature notebook, and after it complete exercise A, which is no page number 29 of this chapter 4 in your English literature book as we asked. So all students complete your work and send me your work here. Thank you.